Hallelujah. हालेलुया। God is always a living God. और जो हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Can you shout hallelujah? हालेलुया। God is good. परमेश्वर भला है। So we have today with us brother Alan Godwin. एंड हमारे बीच में एल्विन गॉडविन है आज हमारे बीच So में। let's put our hands together as we come and share. जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत करते हैं। जय मसीह की। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। That is why He gave you life this morning. और इसीलिए परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है इस सुबह के वक्त। If He has given you life, अगर परमेश्वर ने अगर आपको जीवन दिया है, are you living for Him? क्या आप तैयार है प्रभु यीशु मसीह के लिए? If you are living for Him, अगर आप उसके लिए जी रहे हैं, God will bless you. परमेश्वर आपको आशीष देगा। If you are still away from Him, अगर आप उनसे दूर हैं अभी भी, He will not leave you. और वो आपको नहीं छोड़ेगा। If you are still going far away from Him, और फिर भी आप उनसे और दूर जा रहे हैं, He will take you somewhere where you will find difficulty. और आपको उस जगह पे लेके जाएगा जहाँ पे आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। And then He will bring you back to Himself. और फिर वो आपको अपने उसकी ओर बुला लेगा। Because He loves you. क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, as we bow in your presence, जैसे तेरे आपकी उपस्थिति में हम लोग नतमस्तक होते हैं, we invite your Holy Spirit, O God. और तेरी पवित्र आत्मा को हम यहाँ बुलाते हैं प्रभु। And we pray, Holy Spirit, और ये प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा fill this place with your presence. कि इस जगह को आपकी उपस्थिति से भर दे। Fill each person who's sitting here with your power. और हर जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं तेरे सामर्थ्य से भर दे प्रभु। That they will listen to your voice carefully. ताकि तेरे आवाज को वो ध्यान पूर्वक सुन सके। And their life will be transformed. और ताकि उनकी जिंदगी बदल जाए। That their life will truly become और उनकी जो जिंदगी एक सचमुच में a light to the nation. और ताकि वो एक जगत के लिए एक उजाला का कारण बने। Father, it is your word परमेश्वर ये आपका एक वचन है for your people आपके लोगों के लिए in your time और आपके समय के अनुसार for your glory. कि आपकी महिमा के लिए। Take it to them, Lord, और प्रभु ये वचन उनके पास लेके जाओ and help me to speak what the Spirit tells me to speak. और मेरी मदद कर जो पवित्र आत्मा मुझसे जो कहना चाहते हैं उसको बोलूं मैं। That you get all the glory. Beloved brothers and sisters in Christ, it is a joy to be listening the word from the scripture, ready to receive his word and be strengthened in our faith. As we prepare our hearts for the message, so let us open our hearts, our Bibles, and our minds to listen the word of God through scripture. John chapter 4, और यूहन्ना का चौथा अध्याय से verse 24. और 24वां अध्याय वचन। Those who worship God should worship in spirit and in truth. और परमेश्वर की आत्मा में जो अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। Now if I look at that point where God is saying, Jesus is saying, those who worship Him must worship Him in spirit and truth, there are two things which are very important. और अगर इस बात की ओर मैं ध्यान लगाने की कोशिश करता हूं कि अगर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो उसकी उपासना आराधना आत्मा और सच्चाई से भर के करना चाहिए, तो यहाँ पे दो बातें आती हैं। Is my life completely surrendered to Him? क्या मेरा जो जीवन है संपूर्ण रीति से प्रभु के अधीन में है? And second is, am I doing the will of God? और क्या मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार मैं उस काम को कर रहा हूँ? If this is so, अगर ऐसा है तो it means that our character of God, the character of God which is in us, और इसका ये मतलब कि प्रभु का परमेश्वर जो चरित्र जो मुझ में है, that gets reflected in my praise and worship. और वो एक प्रतिबिंबित हो जाता है परमेश्वर के सामने मेरी स्तुति और आराधना में। Because that is the time when I am giving glory to God. और क्योंकि वो समय जो मैं परमेश्वर को महिमा देता हूँ, And that comes from an intimate relationship with Jesus. वो तभी हो सकता है जब एक घनिष्ठ रिश्ता में प्रभु के साथ निभाता हूँ। So when we walk in the presence of God, और जब हम प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं, we are so joyous and happy और हम बहुत खुश होकर चलते हैं उस वक्त, because Jesus is alive in us. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे भीतर जीवित है। And when Jesus is alive in us, और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे भीतर जीवित होता है, there is no way that we can be troubled. और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कभी उसमें से ट्रबल में आ जाएं, Because He is going before us. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे आगे चलता है। So what is He requiring? और इसके लिए क्या जरूरत है? So He's requiring three things. और यहाँ पे तीन चीजों की जरूरत है।
He wants a relationship with us. और पहली बात है कि वो हमसे एक घनिष्ठ रिश्ता चाहता है, He wants a fellowship with us. वो हमारे साथ वो बात करना चाहता है, And He wants obedience from us. और वो हम चाहते हैं कि हम उनके प्रति आज्ञा पालन करें उसके। 3 things He wants. और 3 चीज ही वो चाहते हैं। But in these 3 things, if we fail, अगर 3 चीजों में अगर हम लोग उसमें फेल हो जाते हैं, praise and worship doesn't have the power to bring glory to God. और जो स्तुति आराधना केवल वो ही नहीं है कि जो सिर्फ सामर्थ लेके आए उसकी महिमा के लिए, Because in praise and worship, और क्योंकि स्तुति आराधना में ही there are miracles happening. क्योंकि चिन्ह और चमत्कार होता है, Because praise brings glory to God. क्योंकि जो स्तुति है प्रभु को महिमा देता है, And when He brings glory to God, जब प्रभु को महिमा मिलता है He transforms your और problems. तभी आपके जो मुश्किल पल है उसको बदल देता And है, He brings healing into your life. और फिर आपके जीवन में वो जो हीलिंग को लेके आता है। So today I'm going to talk about the character of man. और मैं यहाँ पे लोगों के चरित्र के बारे में सुबह आपको बताना चाहता And we हूँ, will go to the book of Job. और हम अय्यूब की किताब की ओर देखेंगे हम। And in Job chapter 1, और अय्यूब की किताब में पहला अध्याय में ऐसा लिखा है, I will read verses 6, 7 and 8. और मैं यहाँ पे 6, 7 और 8वां वचन को पढ़ूंगा। Job chapter 1, verse 6, 7 and 8. अय्यूब का पहला अध्याय उसका 6, 7 और 8 को पढ़ूंगा, And I'm reading from the NKJV version. और मैं NKG वर्जन से उस किताब से मैं पढ़ रहा हूँ मैं। Now there was a day when the sons of God came to present themselves before God, before the Lord, and Satan also came among them. और एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। And the Lord said to Satan, From where do you come? So Satan answered the Lord and said, From going to and fro on the earth and from walking back and forth on it. और यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और ढोलते डालते आया हूं। Then the Lord said to Satan, Have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil? यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा में और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। So now here I am going to take about the life of Job from verse 8 of Job 1. और यहां से मैं आपको बताना चाहता हूं अय्यूब का जो जीवन के बारे में जो 8वां वचन से मैं पढ़ूंगा। Now here you see God himself is declaring about Job that he is blameless and upright. और यहाँ पे परमेश्वर खुद घोषित करता है कि जो अय्यूब है वो जिसने कोई पाप नहीं किया, वो सीधा व्यक्ति है। And yet he is being tried. और फिर भी उसके ऊपर सताया गया उसको। Why is he being tried? Not because of his unrighteousness. और क्योंकि अय्यूब के ऊपर ये मुश्किलें इसीलिए नहीं आई थी क्योंकि वो धर्मी नहीं था, ऐसा नहीं था वो। But in spite of his righteousness. लेकिन धर्मी होने के बाद भी उसके ऊपर प्रकोप आया। God is trying him. और परमेश्वर वहां पे उसको जांच रहा है to establish a relationship, ताकि एक जो घनिष्ठ रिश्ता को वो स्थापित करने के लिए, to understand whether it's a genuine relationship that he has with God. ये समझाने के लिए कि वो जो घनिष्ठ रिश्ता जो है वो सच्चे में है कि नहीं, so that Job himself will have a greater understanding of who God is in his life. ताकि अय्यूब को भी ये समझ में आ सके कि वो परमेश्वर, महान परमेश्वर कौन है उसके जीवन में। So God is telling 4 things to Satan. और यहाँ पे परमेश्वर ने शैतान से 4 बातें कही। He says Job is blameless. और यहाँ पे लिखा है कि जो अय्यूब है उसके ऊपर कोई दोष नहीं है। He is a person upright in his life. और लिखा है कि वो खरा और वो सीधा व्यक्ति है। Then he said he fears God. और वो ये अय्यूब जो है वो भय मानने वाला है। And he shuns evil. और वो बुराई से दूर भागता है। So here God is telling about Job to whom? To Satan. और यहाँ पे अय्यूब जो है वो नहीं, परमेश्वर किससे बात कर रहा है? शैतान से बात कर रहा है अय्यूब के बारे में। And he's saying, here is a man whom I am telling you about. और परमेश्वर कहते हैं ये वो व्यक्ति है जिसके बारे में मैं तुमसे कह रहा हूँ। Because Satan's goal is always to make children of God fail in their life. और क्योंकि जो शैतान के एक ही लक्ष्य है कि परमेश्वर के बच्चों को वो हमेशा वो हरा दे। And to prove Job a sinner.
और ताकि वो अय्यूब को एक ऐसा बना दे कि वो पापी इंसान है, because he knew that God had blessed Job with everything. क्योंकि शैतान जान चुका था कि परमेश्वर ने अय्यूब को पूरी तरह से उसको आशीष दिया था। And he wanted to prove to God और वो वहां पे उस बात को सिद्ध करने के लिए आया था that if you take away things from Job, कि अगर तू अपने हाथ या अपने हाथों को उसकी जो ब्लेसिंग को अगर निकाल देगा अय्यूब के जीवन से, he will not fear you. और फिर वो आपका भय नहीं मानेगा परमेश्वर। But what was God's goal? लेकिन परमेश्वर का क्या लक्ष्य था यहाँ पे? God's goal was to establish that whatever Job is because of his relationship with God. और यहाँ पे परमेश्वर का एक ही लक्ष्य वो दर्शाना चाहता है कि जोब हालांकि कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन वो दिखाना चाहता था कि उसका और मेरा जो संबंध है वो घनिष्ठ संबंध है। God does not give us trials to fail us. और परमेश्वर हमारे सामने हमारे जीवन में मुश्किलें इसलिए नहीं देता है ताकि वो हमें हराना चाहता है, But to establish a deeper walk with him. ताकि हम एक बहुत ही गहराई में प्रभु के साथ हम चल सकें। When we get into that deeper walk with Jesus, जब हम उस गहराई में प्रभु के साथ चलते हैं, he allows that the strength that we have in him is faith, and that faith grows 100%. और ताकि जो विश्वास और जो शक्ति प्रभु में है वो समय प्रभु हमेशा हमारा उसमें 100% बढ़ा देता है। Now the key point I am wanting to teach here today, और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो बात है मैं आपको सिखाना चाहता हूँ सुबह के वक्त, fear of God. कि परमेश्वर का भय, Reverent fear of God. और जो परमेश्वर का जो आदरणीय जो भय है उसके बारे में। If we have the fear of God, अगर प्रभु का जो भय अगर हमारे जीवन में है, we will walk according to the commands of God. और तभी हम प्रभु के आज्ञा के अनुसार चलेंगे। Because John 14:15 says, क्योंकि यूहन्ना का 14 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा है, if you love me, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो obey my commands. मेरे आज्ञा का पालन करो। So the first thing God is saying is that you've got a relationship with me. परमेश्वर कहता है कि तो पहला चीज है कि तुम्हें मेरे साथ एक घनिष्ठ रिश्ता में आना है, You have fellowship with me, और तुम्हें मेरे साथ बात करना है, but obedience is a question mark. और लेकिन आज्ञा का पालन जो है वो एक प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे। Because I do not obey the commands of God. क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का पालन मैं नहीं करता हूँ, And because I do not obey the commands of और God, क्योंकि मैं प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करता हूँ, I do not have the fullness of God. और इसीलिए प्रभु की भरपूरी मेरे अंदर नहीं है, I do not have the fullness of the character of Jesus Christ in me. और इसीलिए परमेश्वर की भरपूरी उसका चरित्र मेरे अंदर नहीं है। So the fear of God और इसलिए परमेश्वर जो भय है makes me to walk in the commands of God. और इसीलिए परमेश्वर के उस आज्ञा के पालन के अनुसार चलने के लिए मेरी मदद करता है। I'll give you a small example. मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण रखता हूँ। Many people would be working in offices here, और यहाँ पे कई लोग जो ऑफिस में काम करते होंगे, and your boss tells them, और आपका जो बॉस एक दिन कहता होगा please don't go in that room कि आप उस कमरे में मत जाना, because all the important documents are kept there. क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स है उस रूम के अंदर है। If you go in that room अगर आप उस रूम के अंदर जाओगे and we find your picture in the camera, अगर सीसीटीवी या कैमरा में अगर आपका पिक्चर आ जाता है, you will be dismissed from service. तो आपको इस सर्विस से, इस ऑफिस से आपको निकाल दिया जाएगा। Will you go to that room? क्या आप उस रूम में जाएंगे? Will you go to that room? क्या आप उस रूम में जाएंगे? So what? Why won't you go in that room? आप उस रूम में क्यों नहीं जाएंगे? Why will you not go in that room? आप उस कमरे में क्यों नहीं जाएंगे? Why will you not disobey that command? आप उस आज्ञा का पालन का उल्लंघन क्यों नहीं करेंगे? Because the focus is on you. The focus is on you. क्योंकि वो जो Focus. क्योंकि वो लक्ष्य जो है वो आपके ऊपर है। The focus is not on Jesus. अगर वो नजर जो अगर यीशु मसीह के ऊपर नहीं है, The focus is on you. अगर वो नजर आपके ऊपर है, And because the focus is on you, और क्योंकि वो नजर आपके ऊपर है, you fear that command. और इसीलिए आपको उस आज्ञा का Because it will डर लगता destroy है, you. क्योंकि वो आपको तबाह कर देगा। But in our walk with Jesus, जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, we disobey God. हम प्रभु को ऐसे ही नकार देते हैं। We don't obey the will of God. हम प्रभु की जो इच्छा को, हम लोग आगे का पालन को हम लोग ऐसे ही नकार देते हैं, We do what we think is right. और हम वही करते हैं जो हमें सही लगता है। And that's why
we are unable to understand the very heart of God. और इसीलिए हम प्रभु के हृदय को नहीं समझ सकते। So the first thing is, if we have the fear of God in us, और पहली बात है कि अगर प्रभु की भय हमारे जीवन में अगर होगा, the first thing that will happen is और पहला चीज ये होगा, faithfulness and integrity. और जो विश्वास योग्यता हमारे जीवन में होगा, And we will be strengthened और फिर हमें बल मिलेगा in body, soul and spirit. और आत्मा, प्राण और शरीर में। Now, the word of God says in Philippians chapter 2 and verse 5, और फिलिप्पियों की किताब में 2 अध्याय उसका 5वां वचन में लिखा है, let your mind be like the Lord Jesus Christ. लिखा कि आपका मन जो है प्रभु यीशु मसीह के जैसे होने दो। Now the fear of the Lord comes when we have the mind of Jesus और जो Christ. परमेश्वर का जो भय तभी आएगा अगर आपका मन प्रभु जैसा होगा। When we have the mind of Jesus और Christ, अगर प्रभु का स्वभाव या उसका मन हमारे जीवन में होगा, we will walk in the presence of God और तभी हम प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे, according to the mind that God has given us. और जो स्वभाव जो मन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, And that mind और वो जो स्वभाव है has 3 things. और उसमें 3 बातें हैं। First, पहली बात, I do nothing which is not from the Father. और मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करूंगा जो पिता से नहीं आता। Second is, दूसरी बात, I will do only those things which please Him. और मैं उसी बातों को करूंगा जो मेरे परमेश्वर को खुश करता है। And third thing is, और तीसरी बात, I will bring glory to His name. और मैं उसकी नाम को महिमा दूंगा। Now when you fear God, जब प्रभु की हम भय मानते हैं, there are 2 things which are taken away. और जो 2 बातें उसको ले दिया गया है, Ego and pride. और जो है दूसरा है वो ईगो, और दूसरा है जो प्राइड, घमंड। Okay. Those 2 things, when we fear God, और ये 2 चीजें अगर हम लोग प्रभु के साथ हम भय में रखते हैं, the word of God clearly takes it away from our life. और तभी प्रभु का वचन हमारे जीवन से हटा दिया जाता है। Job here has everything in the world. और अय्यूब के पास जो संसार में जो चाहिए तो सब कुछ है उसके He had पास, all the blessing in the world. और सारी आशीषें इस दुनिया का सब कुछ उसके पास, But he had the fear of God, and he was a blameless man. और उसको उसके जीवन में परमेश्वर का जो भय था और प्रभु के सामने वो निर्दोष था। Why? क्यों? Because whatever God had given him, he understood it is not mine, it is God's. क्योंकि अय्यूब समझ चुका था कि जो कुछ उसके जिंदगी में उसके जीवन में है वो मेरा नहीं है, वो परमेश्वर का है। So why do we have ego and pride? और फिर हमें इस कौन सी चीज की हमें घमंड होना चाहिए? Because God has chosen us to bring light to the nation. क्योंकि परमेश्वर ने हमें जगत के लिए एक ज्योति बनाया है, He has told us to be the salt to the nation. और ताकि हम इस दुनिया के लिए हम लोग नमक बन सकें। Now when He has made us the light and the salt, जब परमेश्वर ने हमें ज्योति और नमक बनाया है, our job is to know the very heart of God. और हमारा काम एक ही है कि उस परमेश्वर के हृदय को जानना। So when God told Satan, जब परमेश्वर ने शैतान से बात किया there is a man I have like Job, कि एक व्यक्ति है अय्यूब, एक व्यक्ति मेरे पास है, he had a purpose in that. और उसके लिए वहां पे एक योजना है। Because Satan will always try to put you down. क्योंकि शैतान का एक ही काम है कि आपको नीचे गिराए वो, But God is always trying to lift you up. लेकिन परमेश्वर की जो आपको हमेशा ऊंचा उठाता है। But the reason why we are not lifted up, और एक कारण ये है कि हम लोग ऊंचा उठाए नहीं गए, इसीलिए because we do not walk in the spirit of God. क्योंकि प्रभु की आत्मा में हम नहीं चले कभी। Because it says in John 16:13, और यूहन्ना का 16वां अध्याय उसका 13वां वचन में लिखा है, when He, the Spirit of truth, has come, और He जब- will guide you into all truth. और परमेश्वर की जब आत्मा की सच्चाई हमारे जीवन में आता है तो हमें सच्चाई में हमें वो लेके चलता है। He will speak nothing of Himself, but what He receives from the Father, He will reveal to you. और वो कुछ भी ऐसा नहीं बोलेगा जब तक वो परमेश्वर पिता से वो नहीं स्वीकार करेगा, वही वो बोलेगा। It means Job understood the truth of God. और इसका ये मतलब है अय्यूब परमेश्वर की सच्चाई के बारे में जान चुका था। And that's why Jesus said in the New Testament, और इसीलिए यीशु मसीह ने नया नियम में ऐसे कहा है, in John 14:6, और यूहन्ना का 14 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा I है am the way, the truth and the life. कि मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूँ। So when He is the truth of your life, जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का सच्चाई है, why not walk in Him? तो आप उसमें क्यों नहीं चलते? The problem is और ये समस्या ये है, that we are too much involved in the world. और क्योंकि हम लोग बहुत घनिष्ठ रूप से मिल चुके हैं इस दुनियादारी में,
Even in Job's time, और अय्यूब के समय में भी, the condition of the world was same as it is today. और वो भी उस समय का भी जो हालत इस दुनिया का वैसे वो भी समय था। But there was a man, Job, लेकिन एक व्यक्ति था अय्यूब वहां पे, who God gave as a testimony to Satan. और जहां पे परमेश्वर ने उसकी गवाही शैतान को दिया। Today our life has to be a testimony. और इसलिए हमारा भी जो गवाही है परमेश्वर देना चाहिए। Can the people around us see Jesus as a testimony in our life? क्या जो हमारे जो लोग हैं, जो हमारे पड़ोसी, क्या हमारे जीवन को देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये गवाही प्रभु यीशु मसीह के बारे में? And that testimony comes with complete surrender to Jesus. और ये गवाही तभी हो सकता है जब हम पूरी तरह से प्रभु की ओर हम लोग समर्पित होते हैं। So the fear of God. और ये है परमेश्वर का भय। The second part which I want to share with you is shuns evil. और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो बुराई से भाग खड़े हो जाओ। Now the problem in this world is there's so much of evil. और ये जो जगत का समस्या ये है कि यहाँ पे बहुत सारी बुराइयां हैं। There is evil in the church, there is evil outside the church, there is evil in the world, everywhere there is evil. और जो बुराई कलीसिया में है, बुराई कलीसिया के बाहर है, बुराई इस जगत में है। Now there is a very simple part of the word of God in Proverbs chapter 6 verse 16 to 19, Proverbs chapter 6, 16 to 19, where God says that He hates certain things. और यहाँ पे नीति वचन का 6वां अध्याय 16 से 19 में यहाँ पे लिखा, परमेश्वर कहते हैं कुछ बातें हैं जिससे मैं घृणा करता हूँ। And He says the first thing is a proud look and a lying tongue. और यहाँ पे लिखा है कि एक है कि जो झूठ बोलना और एक घमंड होना, घमंड की आंखें। So now when there is pride and lies in us, how can we follow the truth? और अगर हमारे पास घमंड है और झूठी जुबान है, हम लोग कैसे सच्चाई के पीछे जा सकते हैं? But Job shunned evil. लेकिन अय्यूब जो है वो बुराई से दूर भागता रहा, He kept evil away from him और वो बुराई को अपने से दूर हमेशा रखता रहा, because his relationship and fellowship and obedience to God was foundation for him. और क्योंकि उसका जो रिश्ता था प्रभु के परमेश्वर के साथ, वो उसका जीवन का नींव था। Now when we walk with the Lord, जब हम प्रभु के साथ हम चलते हैं, don't think ये मत सोचना that God is with you. कि परमेश्वर आपके साथ है। He is there with you, वो आपके साथ तो है, but is He लेकिन blessing you? क्या वो आपको आशीष दे रहा है? The blessing is not of the material things that you have in life. मैं सांसारिक जो ब्लेसिंग है जो उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ। Even Job had that. और अय्यूब के पास भी ये सब कुछ था। Many people have that. बहुत सारे लोगों के पास ये है, But the world is seeking something else from us. लेकिन दुनिया जो हमसे और कुछ मांग रहा है, They are seeking peace in their life. और वो दुनिया है वो शांति देख रहा है। Can the church give peace to the people क्या outside? कलीसिया जो लोग जो बाहर है उनको शांति दे सकता है कि नहीं? Do you have the peace of Jesus in your life? क्या आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जो पीस है, जो शांति, वो है कि नहीं? Only when you shun evil, the peace of Jesus takes place in your life. जब आप बुराई से दूर भागेंगे तभी प्रभु यीशु मसीह का शांति आपके जीवन में आएगा। Because you cannot have two things together, evil and the peace. क्योंकि दो चीजें आपके साथ नहीं रह सकता, जो बुराई है और वो सच्चाई है, शांति है। Because peace, God says in John 14:27, peace I give to you, not as the world gives. और यूहन्ना का 14 अध्याय उसका 27 वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें शांति देता हूं, जो जगत जो तुम्हें देता वो नहीं। So let not your heart be troubled. और इसलिए तुम व्याकुल मत होना। But the लेकिन problem is our hearts are always troubled. लेकिन ये समस्या ये है कि हमारा हृदय में हमेशा व्याकुल ही रहता है। Because God's word says in Matthew 6:25, do not worry. और क्योंकि मत्ती का 6वां अध्याय उसका 25 वचन में लिखा है कि तुम किसी चीज का वरी मत करो। Now when we worry, it means that there is something of the world in our lives. जब हम किसी बात की चिंता करता है, इसका मतलब ये है कि मैं कुछ दुनियादारी जो मेरे अंदर अभी भी चल रहा है। In Philippians 4:6 it says, be anxious for nothing. और फिलिपियों किताब का 14 अध्याय का 6 में लिखा है, 6वां वचन में लिखा है कि किसी चीज के लिए भी तुम एंशियस मत रहना, चिंता मत करना। 2 Timothy 1:7 says, I have not given you a spirit of fear, और दूसरा तिमोथी 1 अध्याय 7 वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं दिया है। but fear, anxiety, worries all in our lives. और लेकिन जो डर है, जो शंकाएं हैं, जो सब कुछ हमारे जीवन में होता है। That is why we are not able to rise as a testimony to the people outside in the world. और इसीलिए हम लोग गवाही के द्वारा हम उठ खड़े नहीं रह सकते जो दुनिया में के जो लोगों के बीच में। So we have to shun the evil और इसलिए
इसीलिए हमें बुराई से बच के रहना है। And when we shun the evil, Satan flees. हम जब बुराई से भागेंगे तो शैतान हमसे भाग जाएगा। Why? Because we are trusting God now completely. क्योंकि हम परमेश्वर की और पूरी तरह से अभी निर्भर हैं हम। When we trust the Lord, somebody shared here Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all your heart. और किसी ने नीति वचन का 3 अध्याय 5 वचन कहा कि ना संपूर्ण रीति से प्रभु की ओर तुम निर्भर रहना And lean not in your own और understanding. अपने ही समझ में मत रहना। So why is he saying that? Don't lean in your own understanding. तुम अपने ही समझ में मत निर्भर रहना। Because क्योंकि you will get wisdom from me. क्योंकि परमेश्वर कहते कि मैं मेरी ओर से तुम्हें वो सोच और समझ आएगा। Because verse 7 of Proverbs 3 says, do not be wise in your own eyes. और इसीलिए नीति वचन का 3 अध्याय का 7वां वचन कहता है कि अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। So when we are wise in our eyes, it means we are taking the things of the world to take a decision. और इसका मतलब ये है कि जब हम बुद्धिमान बनते हैं अपने ही क्षमता से तो दुनिया की जो चीज हम अपने जीवन में ले लेते हैं। But if we go to Jesus and the word which God has given us, every problem gets solved. और जब हम प्रभु के पास जाते हैं उसके वचन के अनुसार जाते हैं तो मेरी हर समस्या है वो दूर हो जाती है। I don't have time to share my testimonies which are numerous. और मेरे पास गवाही नहीं है आपके पास आपका समय नहीं है कि आपका जो मेरी गवाही आपके साथ रखने के लिए क्योंकि अनगिनत गवाहियां हैं। I have gone to the deepest pit where God has taken me. और मैं उस तराई में जा चुका जहां परमेश्वर मुझे लेके जा चुका था। Where I did not have a rupee with me. और जहां पे मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। And he took me to the mountain top when he gave me everything. और उस पर्वत की चट्टान के उस चोटी पे भी लेके गया जहां पे मेरे पास सब कुछ हो गया। But he told me one thing. लेकिन परमेश्वर ने एक चीज कहा मुझसे, Will you do what I say? क्या तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा तुमसे? I promised the Lord, Lord, whatever you will say, I will do. और मैंने वादा किया परमेश्वर से कि प्रभु तू जो कुछ कहेगा मैं वो ही करूंगा। When I told that to the Lord, और जब मैंने ये बात परमेश्वर से कहा, the Lord took me through many trials. और फिर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बहुत सारे मुश्किल दौर से लेके गया। And then he took me to the word. और फिर वो मुझे वचन में लेके गया। James chapter 1, याकूब की किताब का 1 अध्याय verse 2. और 2 वचन। When you go through trials, count it all joy. और हे भाइयों जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, Count it all joy. ये याद रखना है कि ये Verse 3. Go to verse 3 and verse 4 also. और तो इसको पूरी आनंद की बात समझो। Yes. ये जान कर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। Yes, that you may lack nothing. और कि तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। You lack nothing. आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। The first thing that you will not lack is the peace of God. और एक चीज जो आपके जीवन में कभी खत्म नहीं होगा या किसी चीज की कमी नहीं होगी वो है परमेश्वर प्रभु की शांति। The second is the love of God. और दूसरा है परमेश्वर का प्रेम। And the third is the joy of God. और वो है दूसरा है प्रभु का आनंद। You try it and see. और आप उसको ना आप ट्राई करके देखिए। आप Shun evil. आप बुराई से बच के रहना। Satan will put many things in your mind. शैतान आपके मन में बहुत सारी चीजों को लेके आएगा। Tell him, I know Jesus is my victory. और आप बोल देना उसको कि प्रभु यीशु मसीह मेरा विजयवंत है। And the moment you tell that, he will flee. और जैसे ही आप उसको बोलते हैं शैतान भाग जाएगा। That is what happened with Job. और यही चीज हुआ अय्यूब के साथ। That is why God said you are blameless. और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि ये जो सिद्ध व्यक्ति है, Job was blameless. और जो परमेश्वर जो अय्यूब था उसके ऊपर कोई दोष नहीं था। Why? Because what he was doing was according to the will of God. क्योंकि वो अय्यूब जो भी कुछ कर रहा था परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहा But था। this is up to chapter 1. और ये तो केवल चैप्टर 1 तक ही था, सीमित था। But if you go to the next chapters, लेकिन उसके आगे के आप अध्ययन में जाओगे, he was now trying to see himself as a cursed man. और फिर उसने अपने आप को देखा कि परमेश्वर जो उसने ये देखा कि मेरे ऊपर श्राप है करके। But if you go to to chapter 40 and 41, 42, और फिर हम 40, 41, 42 के चैप्टर में पढ़ेंगे and he began to talk with God. और फिर उसने परमेश्वर के साथ बात करना शुरू किया। And when he began to talk with God, God asked him some questions. और जब परमेश्वर के साथ उसने बात करना शुरू किया परमेश्वर यहाँ से कुछ प्रश्न पूछ रहा है। And then he understood फिर वो समझ गया that his life before everything was taken away, और उसका जीवन में जो सब कुछ लेने से पहले everything was good. और सब कुछ तो अच्छा था। But when he went through this trial, जब इस मुश्किल दौर से वो जाना शुरू हुआ, he also began to fall. और He also began to fall. और फिर वो भी गिरना शुरू हुआ। But what did God do? लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? God spoke. यहाँ परमेश्वर ने बात किया। Humanly, we will all fall.
और आप देखेंगे कि शरीर के रूप से हम सब गिरेंगे। But are we coming back to Jesus? ये सवाल ये कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह के वापस आ रहे हो कि If नहीं? we are coming back to Jesus, अगर प्रभु के पास वापस आप आ रहे हैं तो God will bless you. परमेश्वर आपको आशीष देगा। And that is what happened in Paul's life as well. और ऐसे ही हुआ पौलुस के जीवन में भी। When he was Saul, जब वो सोल था he was persecuting the church. और उसने जो कलीसिया थे उसके ऊपर बहुत सा मुश्किलें लेके आए। He was thinking that he was doing good things for God. और पौलुस ये सोचता था कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। In the same way, church people think today, if they do good things for God, God is happy. और कलीसिया में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब प्रभु के लिए कुछ करते हैं हम वो सोचते हैं कि प्रभु मुझसे बहुत खुश हैं। It is not like this. ऐसा नहीं है भाइयों। The Bible says in Romans chapter 14 verse 17, और रोमियो की किताब का 14 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है, for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है। Righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. लिखा है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं लेकिन धर्म मिलाप और आनंद है। So Paul, he thought that what he was doing good for God. और पौलुस सोच रहा जो कुछ मैं कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ। But when he met Jesus on the road to Damascus, लेकिन दमास्कस के उस मार्ग में वो प्रभु यीशु मसीह से मिला he met the Savior. और वो अपना उद्धारकर्ता से मिला। When he met Jesus, his life got transformed. जब वो यीशु मसीह से मिला उसका जीवन बदल गया। Why his life got transformed? Because as what brother said in the morning, have we put Jesus on the throne of our life? और उसका जीवन कैसे बदला? जैसे भाई ने कहा था कि क्या प्रभु यीशु मसीह को आपने पहला स्थान दिया है कि नहीं? That is important. और सबसे महत्वपूर्ण बात है, Are you giving Jesus the first place in your life? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला ओहदा दे रहे हो कि नहीं? Are you communicating with Jesus in the first thing in the morning when you get up? क्या सुबह के वक्त जब आप उठते हो कि पहला बात किससे कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्रभु यीशु से आप बात कर रहे हो कि नहीं? Jesus was an example. और यीशु मसीह एक उदाहरण है। He met the Father before he began his day. और प्रभु परमेश्वर से बात करता था अपना जीवन अपना दिन को शुरुआत करने से And he पहले। spoke to the Father when he ended the day. और फिर वो परमेश्वर के साथ बात करता था अपना दिन को खत्म करने से भी। Same thing with Paul. और पौलुस भी ऐसे ही था। That he said, for me to live is Christ and to die is gain. और कहा है कि प्रभु के लिए जीना मेरे लिए यीशु है और मरना भी मेरे लिए भी उत्तम है। So God is wanting to change you today. और परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। He wants you to become the light to the nation. परमेश्वर चाहता है कि आप इस जगत के लिए उजाला बनो। I am just coming back from Gujarat. और मैं गुजरात से अभी वापस आ रहा हूँ। If you see the persecution of the Christian church in Gujarat, you will be astonished. आप देखेंगे कि जो कलीसिया का जो सताव हो रहा है गुजरात में बहुत ही मुश्किल है वहाँ पे। People are having difficult times to go even to reach with the gospel. और वहाँ पे लोगों के पास जो सुसमाचार पहुँचना भी इस वक्त में बहुत मुश्किल हो चुका है। But there are people who are going to the places in Gujarat to preach the gospel. लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो गुजरात में जा रहे हैं प्रभु के वचन को वहाँ पे भी वो प्रचार कर रहे हैं। And God is making them the light to the people of Gujarat. और वही लोगों को परमेश्वर उस गुजरात के लिए एक ज्योति का कारण बना रहा है। Today we might be comfortable here in our praise and worship and listening to the word. आप बहुत ही आप आराम से बैठे हैं प्रभु की स्तुति आराधना सुनना उसके वचन को सुनने के लिए। But my brothers and sisters here, please understand one thing. When you go out from this place, how long do you remember God's word? मेरे प्रियो मेरे भाई बहनों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जब इस जगह से बाहर जाओगे आप कितने पल तक प्रभु को अपने मन में उसको याद करोगे। Ask God to write His word on your heart. परमेश्वर से कहना कि प्रभु तेरी जो कलाम है प्रभु मेरे हृदय में तुझसे उसको लिख दे। And when you do that, आप जब आप करेंगे उसको you will become a blessing to yourself and to your family. और तभी आप आशीष का कारण अपने लिए बनोगे और आपके परिवार के लिए बनेंगे। 9th verse of Job 1:8. So Satan answered the Lord and said, does Job fear God for nothing? Does Job fear God for nothing? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? Verse 10. Have you not made a hedge around him, around his household, and around all that he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसके हैं उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है।
God will bless you in the same way. परमेश्वर भी आपको ऐसे ही आशीष देगा। When you make Jesus your first place in life, जब भी जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे, when you study His word, जहाँ पे उसके वचन को आप पढ़ते हैं when you memorize His word, और उसके वचन के ऊपर मनन करते हैं when you meditate on His word, और उसके वचन के ऊपर चलते हैं, so meditate that your fellowship, relationship and obedience to the word becomes paramount. ताकि आप प्रभु के साथ जो चलना, संगति करना, उसके साथ चलना, वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। My last verse to you, और मेरा अंतिम जो शब्द आपके लिए ये है, Paul says in Philippians chapter 2, पौलुस कहता है कि फिलिपियों की किताब के दूसरा अध्याय में in verse 6, 7 and 8, और 6, 7 और 8 वचन में कहा है, he's showing the inner character of God. और वो हमारे जो अंदरूनी रूप का जो चरित्र है उसको दर्शाएगा। Jesus made himself of no reputation. और यीशु मसीह ने अपना नाम के बारे में कुछ नहीं सोचा, He humbled himself like a servant. और उसने अपने आप को नम्र किया एक दास के नाते, He became humble. Humility was his forte. और वो अपने आप को नम्र किया, वो वैसे ही उसने कार्य किया, And obedience was his part. और वो आज्ञा का पालन उसने अपना एक भाग समझ Even कर to the किया, cross. और कलवरी क्रूस तक के लिए। That is important. और ये बहुत महत्वपूर्ण है। If we want to live victorious lives, अगर हमें विजयवन जीवन जीना है, if we want God to tell Satan, go to the house of God, my people are there. अगर परमेश्वर चाहता है कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर कहे शैतान से कि जाओ मेरे लोग हाउस ऑफ गॉड के वहां बैठे हैं, वहां पे है, God will vouch for you. और परमेश्वर आपकी और नजर लगा के बैठेगा। But you have to be right with God. लेकिन परमेश्वर के सामने आपको सही होना है, You have to be straight with God. और आपको सीधा होना है, You have to be humble with God. और परमेश्वर के सामने आपको नम्र होना है, You'll have to have a servant attitude. और आपके अंदर एक दासित्व का एक हृदय होना चाहिए। And then God will make you shine like stars in this crooked and perverse और generation. तभी परमेश्वर आपको एक चमकता तारा बनाएगा इस बुरी इस जगत में। Philippians chapter 2, 14, 15. Can anyone, if it comes there, he wants to make you shine like stars in this crooked and perverse generation. और फिलिपियों किताब का दूसरा अध्याय उसका 15वां वचन में लिखा है, 14, 15. 14 and 15, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। You cannot take the word of God unless light shines in your life. और परमेश्वर के वचन को आप ऐसे नहीं लेके जा सकते जब तक परमेश्वर का जो ज्योति है आपके ऊपर नहीं है, And that light is the word of God. और वो जो ज्योति है परमेश्वर का वचन है। When you have the word of God in your life, और जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में होता है, your life will be like Job. और आपका जीवन अय्यूब का जीवन जैसे Your दर्शाएगा, life will be like Paul. और आपका जीवन है पौलुस जैसे दिखेगा, Your life will be like Abraham. और आपका जीवन अब्राहम जैसे दिखेगा। And that's why God told Abraham, और इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, I will make you a blessing to the nations. और इसीलिए कहा कि मैं तुझे आशीष का कारण बनाऊंगा देशों के लिए। House of God should be a church on a hill where people will come and receive the blessings from God. और ऐसा होना चाहिए कि हाउस ऑफ गॉड जो कलीसिया है वो पर्वत पर जो चट्टान में होना चाहिए, ताकि लोग आए और परमेश्वर के आशीष को वो ले सकें। Read the word, meditate the word, live the word. God will bless you. और परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसके ऊपर चलना, उसके साथ चलना, उसके ऊपर मनन करके उसको मान के चलना। परमेश्वर आपको आशीष Thank दे। you and God bless you. धन्यवाद, और परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you, brother, for the beautiful word. धन्यवाद भाई इस सुंदर से इस वचन के लिए। The chasm that lay between us, How wide the mountain I could not climb. in desperation, I turned to heaven and spoke your name Into the night. and then the darkness, your loving kindness through the shadows of my soul.
imagine. So great to mercy, what heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to bear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living. Hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning That sealed the promise. Your buried body began to breathe. out of the silence, The roaring lion declared the grave. has no claim on me. Hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's Salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ. Amen. What a powerful word from the Lord today through his servant. If you have been blessed, then share it with others. Encourage those around you and be a light in this world. May the grace of our Lord Jesus Christ be with us all and keep growing in his word. God bless you.